ওকে, সো রিয়া জাস্ট ইনফর্ম মি, তুমি ভিডিওগুলো আমি পাঠিয়েছিলাম সেগুলো দেখে কি বুঝতে পেরেছো না কোথাও ডাউটস আছে? অমৃতা, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। জাস্ট অ্যাজ দিস ইজ ইউর ফার্স্ট ক্লাস, আমি জিজ্ঞেস করছি ভিডিওগুলো তো সবই মোটামুটি পেয়েছো তাই তো অমৃতা? জাস্ট রিপ্লাই, ভিডিওগুলো কোনো জায়গায় কোনো ডাউট আছে না বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তো তোমাকে একটু বলে রাখি, এর আগে আমার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে কুলম্বস ল থেকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স বেসিক্যালি স্টার্ট হচ্ছে। তো সেখানে কিছু ভিডিও আছে, আরো অনেক 7-8টা ভিডিও আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে আছে। ফার্স্টে আছে কুলম্ব ল, তারপর সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল, তারপরে আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কনসেপ্ট, ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, তারপরে আছে গস ল। তো তোমার যদি আজকে অবধি যাই ক্লাসগুলো হয়েছে সেই ভিডিওগুলো যদি টিল টুডে মানে যেই 3টে ভিডিও পাঠিয়েছি সেটা বোঝা হয়ে যায়, তুমি জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ করবে, স্যার আপনি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের ফার্স্টের থেকে ক্লাসগুলোর রেকর্ডিং দিন। তাহলে আমি কি করব, কুলম্বস ল থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অবধি যত ক্লাস হয়েছে সেই সবকটারই ভিডিও রেকর্ডিং তোমাকে দিয়ে দেবো। আরেকটা কথা বলে রাখি, এটা দেখে অনেকের মিসকনসেপশন হয় যে ইউটিউবে তো সব ভিডিও পাওয়া যায় না, সেটা তোমাদের এই একটা মানে তোমরা তো স্টুডেন্টরা বুঝতে পারবে না। মানে যারা ধরো ইউটিউবে কিছু ভিডিও পাবলিক করা থাকে সেটা সবাই দেখতে পারে, বাট সব ভিডিও যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যারা আমার স্টুডেন্ট, এভরি ভিডিও সব ভিডিও কিন্তু আমার স্টুডেন্টরাই দেখতে পারে, ঠিক আছে? ধরো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের 3-4টে ভিডিও পাবলিকের জন্য আছে ভিউ করা, বাকি সব কটা সবাই দেখতে পারে না, সেগুলো আনলিস্টেড করা থাকে বা কখনো কখনো প্রাইভেট করে রাখি, ঠিক আছে? তো তোমরা যেহেতু আমার স্টুডেন্ট, তোমাদের সব ভিডিওই তোমাদের অ্যাক্সেস থাকবে, শুধু তোমরা আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে করবে। আচ্ছা, যেমন নাকি অমৃতা নতুন স্টুডেন্ট, ওকে বললাম আমাকে মেসেজ করে দেবে যে স্যার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের কুলম্বস ল থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অবধি যা ভিডিও আছে আমাকে একটু কাইন্ডলি পাঠান। আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, তুমি সিরিয়ালি দেখে নেবে সারা সপ্তাহ থেকে, ঠিক আছে? হয়তো দুদিনে আজকের পরে আবার শুক্রবার ক্লাস হবে, এর মধ্যে সব ভিডিও দেখা হবে না, বাট যতটা বড় দেখে থাকবে। এই কারণেই অনলাইন ক্লাসে যেটা হয় আমার, কেউ পিছিয়ে থাকে না, যেটা অফলাইনে কোনো ক্লাস মিস গেল তো মিস গেল, আর কোনোদিন ওটা রিকভারি হয় না। কিন্তু এইখানে সবই যেহেতু ভিডিও রেকর্ড করে রাখি, সবই তুমি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবার ভিডিওগুলো দেখে যেখানে আটকাবে ইউ ক্যান আস্ক মি যে স্যার অমুক জায়গায় অমুক ভিডিওতে ওই জায়গাটা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, এবার ধরো কোনো একটা ভিডিও দেখছো, তোমাকে বলে রাখি যেহেতু সবাই জানে তুমি জানো না, কোনো একটা ভিডিও ধরো দেখছো, ভিডিও দেখতে দেখতে ধরো সাপোজ অ্যাজ সাচ ডাইপোল মোমেন্ট পড়াচ্ছি, ডাইপোল মোমেন্ট পড়তে গিয়ে ধরো ডাইপোল মোমেন্টের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনো একটা পয়েন্টে, ধরো অ্যাক্সিয়াল পয়েন্ট আছে, ওখানে অনেক পয়েন্ট আছে, অ্যাক্সিয়াল পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করতে বলেছে, তুমি বুঝতে পারছো না, তুমি নোটসটা লিখে রাখবে, যেটা বোর্ড ওয়ার্ক করছি আমি, ব্র্যাকেটে সাইডে লিখে রাখবে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝতে পেরেছো? তুমি তাহলে আমাকে ক্লাসে জিজ্ঞেস করতে পারবে যে এই জায়গাটা বুঝতে পারি না। আরেকটা জিনিস, ধরো ডাইপোল মোমেন্ট পড়াতে গিয়ে যেই জায়গাটা তুমি বুঝতে পারছো না, ওটাতে একটা ভিডিও তো দেখবে ইউটিউবে টাইম লেখা থাকে তলায়, তাই তো? যে ওই জায়গাটা ধরো টোটাল 50 মিনিটের ভিডিও, ওটা ধরো 30 মিনিটস 50 সেকেন্ড, যেই জায়গাটা বুঝতে পারোনি সেই জায়গাটা ধরো লেখা আছে 30 মিনিটস 50 সেকেন্ড, তুমি না লিখে রাখবে কোন টাইমে তুমি ওই টপিকসটা আছে। তাহলে কি তুমি যখন আমাকে ক্লাসে বলবে স্যার ওই ভিডিওটার এই টাইমিংটাই আমি বুঝতে পারিনি, তাহলে আমি স্পট করে ওই ভিডিওটা ওপেন করব, ওই টাইমে চলে যাব, তোমাকে তোমার ডাউটসটা ক্লিয়ার করে দেবো। বোঝা গেছে? ইয়েস অর নো? রিপ্লাই দেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড অমৃতা? ওকে, তাহলে আজকে আমি আমার টপিকসটা স্টার্ট করছি। কেউ একজন আমাকে মনে করাবে আজকে কোন জায়গাটার থেকে স্টার্ট করার ছিল। আজকে আই থিঙ্ক ক্যাপাসিটেন্স দিয়ে তাই তো? পোলারাইজেশনটা পরে করাবো, স্টার্ট দ্য ক্যাপাসিটেন্স। জাস্ট এ মিনিট।
আচ্ছা, ক্যাপাসিটার হেডিংটা দিচ্ছি, ক্যাপাসিটেন্সই বলছি ফার্স্টে। ক্যাপাসিটেন্সটাকে জেনারেলি সি দিয়ে ডিনোট করা হয়। এই ক্যাপাসিটেন্স কি না, একটা ক্যাপাসিটারের, একটা কন্ডাক্টরের ক্যাপাসিটেন্স, ইলেকট্রিক্যাল ক্যাপাসিটেন্স অফ এ কন্ডাক্টর, এটা হচ্ছে হেডিং। তো আমি ক্যাপাসিটেন্স দিয়ে স্টার্ট করছি। স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিনটা ও দেখেন। স্ক্রিন শেয়ার করিনি না, জাস্ট এ মিনিট। আই থিঙ্ক এবার সবাই হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, Yes, আপনি? sir. ক্যাপাসিটার এই জিনিসটা কি, আমি একদম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ভুলে যাও, জাস্ট টেল মি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্যাপাসিটার। এই কথাটা এসছে ক্যাপাসিটি থেকে, ক্যাপাসিটি। ওকে, এইভাবে কিন্তু কোনো বইয়ে বলা নেই, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। ক্যাপাসিটি এই চ্যাপ্টারটা জিনিসটাই আছে কিসের ওপর না, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, মানে স্ট্যাটিক চার্জের ওপর। এই চ্যাপ্টারটাই দেখবে তোমাদের হেডিংটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক। So this chapter is concerned with the charges which are in static condition, মানে চার্জগুলো কিসে আছে, রেস্টে আছে। এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চ্যাপ্টারটাই দেখবে সব চার্জই কিন্তু রেস্টে আছে, yes or no? No charge is moving। যেটা পরের চ্যাপ্টারে আছে তোমাদের, দ্যাট ইজ ইলেকট্রিসিটি, সেখানে দেখবে চার্জগুলো মুভমেন্ট করছে। তো একই চার্জ যখন রেস্টে থাকে সে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আনে, আবার সেই চার্জটাই যখন মুভমেন্ট করছে সে অন্যরকম ঘটনা ঘটায়, তাই তো? Yes or no? Samia, are you understanding my point? Capacitance, what do you mean by capacity? যে কোনো জিনিসের জাস্ট টেল মি, তারপরে আমি স্টার্ট করছি। ক্যাপাসিটি বলতে কি বোঝো? চার্জ ভুলে যাও, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্যাপাসিটি? হ্যাঁ বলো, এনিওয়ান? The extent to which an object can hold anything. Yes, holding or containing something. Suppose this is a glass or container of having maximum, it is having 300 ml. What does it mean? It can hold any kind of liquid, maximum volume is 300 ml, yes or no? So this is the capacity of this container, তাই তো? গ্লাস হোক বা যাই হোক, yes or no? রিপ্লাই দেবে। এর থেকে যদি বেশি লিকুইড রাখো তাহলে কি হবে? that liquid will overflow, because why? Because it is beyond its capacity, yes or no? তাই তো? all of you please reply. Yes. So any container, যেটা লিকুইড দিয়ে বোঝালাম, বা যে কোনো তুমি সলিড মেটেরিয়াল দিয়ে বুঝতে পারো, যে কোনো একটা জিনিসে, যেমন নাকি জলের বোতল কিনলে দেখবে, if you want to buy some water bottle, उसके मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है its capacity is 1 liter कि 900 ml, তাই তো লেখা থাকে। what does it mean? It means that its maximum it can hold up to 900 ml or 1 liter of water। যদি 1 liter হয়, ম্যাক্সিমাম এটা 1 liter ওয়াটার হোল্ড করতে পারে, তার থেকে বেশি হলে জলটা পড়ে যাবে ম্যাক্সিমাম, তার মানে ইটস ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি। সো এইখানে যেটা আমরা পড়বো ক্যাপাসিটি, ক্যাপাসিটার বলতে এখানে কি হোল্ড করছে, হোয়াট ইজ দ্য মেন এইম অফ দ্য স্টোরিং, মানে এখানে ক্যাপাসিটি বলতে কি বুঝবো, কি স্টোর করার কথা বুঝবো, চার্জ। So here the capacity is, what do you mean by capacity of any material or any container? We will find that here the capacity is concerned with the capability of or storing of charge. Storing of charge, কে কতটা চার্জ স্টোর করতে পারে। ওকে, it is the capacity of storing of charge। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমার নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আপনি কি বললেন একবার বলা যাবে? হ্যাঁ, এখানে যেটা আমরা বলছি ক্যাপাসিটেন্স বলতে, এখানে আমরা বলছি ক্যাপাসিটি বলতে ক্যাপাসিটি অফ স্টোরিং অফ চার্জ।
যেমন কোনো একটা ওয়াটার পটে বা কন্টেনারে কতটা ক্যাপাসিটি, কতটা জল ধরে রাখার ক্ষমতা আছে, কতটা জল স্টোর করতে পারে। তো এখানে ক্যাপাসিট্যান্স বলতে আমরা বুঝবো কোন মেটেরিয়াল কত পরিমাণ চার্জ স্টোর করতে পারে। ওকে, এইবার আমরা সিম্পল একটা কনসেপ্ট দিয়ে বলছি। The electrical capacitance of a conductor is the measure of ability to hold electric charge. এই ডেফিনেশনটা আমাকে লিখতে হবে, এই কনসেপ্টটা লিখতে হবে, নাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না। এটা আমি লিখছি, সবাই দেখো, পারলে লিখেও রেখো, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। The electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge. এটা তোমরা লিখে রাখতে পারো। এখানে দেখো যেটা আমি বললাম, আন্ডারলাইনও করছি, ক্যাপাসিট্যান্স, ইলেকট্রিক্যাল ক্যাপাসিট্যান্স ইজ নাথিং বাট দ্য ক্যাপাসিট্যান্স, সিম্পল, এই চ্যাপ্টারে। The capacitance of a conductor is measure of its ability to hold electric charge. Hold মানে কি, স্টোর করে রাখছে, কতটা ও স্টোর করতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই কটা লাইন লিখতেই আছে, এটা লেখা হয়ে গেলে বলবে। তারপর আমি লিখছি এক্সপ্লেনেশনটা। When an insulated conductor, insulated means যার সাথে কিনা বাইরের অ্যাটমসফিয়ারের বা এনভায়রনমেন্টের কোন রকম ট্রানজাকশন হচ্ছে না, মানে চার্জ আদান প্রদান, চার্জ দিচ্ছেও না নিচ্ছেও না, কার সাথে, বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে। ওকে, সেটা আমি লিখছি। when an insulated conductor is given some charge, it acquires a certain potential. এটাকে লিখে রাখো, তারপর আমি এক্সপ্লেন করব। ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করব। if we increase the charge on a conductor, দেখো একটা কন্ডাক্টর, ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর, যেখানে কিনা আমরা চার্জ দিয়েছি, কিছু পরিমাণ চার্জ আছে। এইবার তারপরে যদি if we increase the charge on a conductor, its potential also increases. ব্যাপারটাকে আমি বলছি, তোমরা আগে লিখে রাখো। আগের স্লাইডটা একটু দেখাবেন? হ্যাঁ, লেখাই তো আছে, সবই তো বোর্ডে লেখা আছে। স্যার আগের স্লাইডটা স্যার, মানে পেজটা। আচ্ছা, এটাকে লিখে নিই, তারপর আমি যাচ্ছি ওখানে। হ্যাঁ, সবার লেখা হলে বলবে। এবার এখানে আন্ডারলাইন করছি আমি। when an insulated conductor, আমি ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর বলতে কি বোঝায় আমি ছবি এঁকে বোঝাবো একটু পরে। what does it mean of insulated conductor, I will explain.
when an insulated conductor is given some charge, it acquires a certain potential. I will tell. If we increase the charge, I mean to say, मान लो किसी भी कंडक्टर में हमने 8 कूलम चार्ज दिया है, उसके बाद हम उस चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, 8 और 2 कूलम ऐड किया तो कितना होगा, 10 कूलम चार्ज। तो अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ये कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, आई जस्ट वांट टू पर्टिकुलरली मेंशन अमृता, आर यू देयर? यस। আচ্ছা দেখো, कुछ কোনো জিনিস তোমার বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে, বিকজ তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের কনসেপ্ট জানো না, ঠিক আছে? তো জাস্ট ওই জায়গাটা আমাকে বলবে স্যার বুঝতে পারলাম না, কোনো জায়গায় কেউ বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে। আর এটা ন্যাচারাল যে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড তো জানো না, তো কয়েকটা এক্সপ্রেশন আমি লিখবো এখন, সেটা হয়তো তুমি বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? তুমি আমাকে বলবে, আমি বলে দেবো এটা কোন জায়গাতে আছে, কোন ভিডিওতে আছে, আমি তোমাকে বলে দেবো। আচ্ছা এবার দেখো আমি এখানে, আচ্ছা কি একজন বলছিল আগের স্লাইড, এই স্লাইডটা, তাই তো? অন্বেষা বলছিল, তাই তো? অন্বেষা বলছিল ওনা, হ্যাঁ স্যার। লিখে নাও। এবার देखो कैपेसिटेंस से যেটা ধারণা আছে, नॉर्मल जो कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो हम राइट कर रहे हैं। In general, the capacitor is denoted as this: two parallel slides, two parallel plates. This is denoted like a capacitor. बैटरी के साथ कैपेसिटर का सिंबल का यही डिफरेंस है। बैटरी का क्या होता है, एक लंबा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। लंबा लाइन को प्लस बोलते हैं और छोटे लाइन को माइनस बोलते हैं, कि नहीं? दिस इज बैटरी। और कैपेसिटर क्या क्या होता है, दो एंड ही सेम होता है, ये सब नो अंडरस्टैंड? জেনারেলি এরকম করা হয়। এবার ক্যাপাসিটরটাকে যদি আমি একটু বড়ভাবে ড্র করি, তাহলে দুটো এন্ডকে বড় করে ড্র করলাম। ইট ইজ নট এ লাইন, বেসিক্যালি इफ आई ड्रॉ, देखते पारबे দুটো प्लेट है, ये दो क्या है ना, प्लेट है। दीज आर द टू प्लेट्स। कैपेसिटर का दो एंड जो होता है उसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते तो क्या होगा, दो प्लेट होता है, अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इसमें क्या होता है ना, अगर हम ड्रॉ करेंगे सिंबल में तो दो लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसमें एक प्लेट में क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंडरस्टैंड? और दूसरे प्लेट में क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज रहता है, अंडरस्टैंड? ये सब ना। सो कंडक्टर का मतलब क्या है ना, जहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है, दैट इज अ कंडक्टर, अंडरस्टैंड? ये जो प्लेट है कंडक्टर है। लेकिन इंसुलेटेड कंडक्टर मीन्स, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्लेट के भीतर जो गैप है ना, जो गैप है, ये क्या है, इंसुलेटर, अंडरस्टैंड? इंसुलेटर रहेगा तभी तो, देखो अगर मान लो, जस्ट इमेजिन दोनों प्लेट के भीतर एक कंडक्टर रख दिए, एक मीडियम कंडक्टर, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, ये समझो? प्लस प्लेट की तरफ से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज स्टोर कर पाएगा? ये सब अमृता चार्ज स्टोर करते पारबे, तখন পারবে না, है कि ना? सो दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर कंडक्टर। मतलब दोनों कंडक्टर जहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है, दोनों प्लेट, उसके भीतर एक इंसुलेटर रखना पड़ेगा। इंसुलेटर बहुत सारा हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और भी सारा चीज हो सकता है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। और बाहर में भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। इंसुलेटेड इसीलिए इसको बोला जाता है इंसुलेटेड कंडक्टर। मतलब कंडक्टर जो होता है चार्ज स्टोर कर पाता है, लेकिन वो कहीं पर भी चार्ज को फ्लो नहीं करेगा, मतलब वो चार्ज स्टोर করে রাখতে পারবে, চার্জ একটা প্লেট থেকে আরেকটা প্লেটে যাবে না। এইবার প্রশ্ন আসছে যে যদি, ये तो पहला बात मालूम पड़ गया। देखो, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज दैट, हाँ, when an insulated conductor is given some charge, it acquires a potential। देखो सिंपल, पोटेंशियल चैप्टर में ही हमने बोले थे, मान लो यहाँ पर Q चार्ज है, तो R डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होगा, अगर ये फ्री स्पेस है तो
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नो। अगर मान लो तुमने यहाँ पर Q चार्ज और 2Q चार्ज, यहाँ पर आरो यू हैव एडेड अनदर चार्ज एट दिस पॉइंट, जिसका वैल्यू है कि इस पॉइंट पे दूसरा चार्ज ला दिए जिसका पॉइंट है 2Q। तो इसमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, टोटल यहाँ पर कितना चार्ज है Q प्लस 2Q, ये सब नो, तो टोटल कितना चार्ज होगा 3Q। तो यहाँ पर पोटेंशियल, नया पोटेंशियल क्या होगा, न्यू चार्ज, टोटल चार्ज 3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो देखो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, एज यू आर इंक्रीजिंग द चार्ज पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये सब नो, प्लीज रिप्लाई। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो अगर तुम्हारे प्लेट में मान लो यहाँ पर पहले Q कूलम चार्ज था या 2Q कूलम चार्ज था, इसके बाद तुमने क्या किया नहीं, यहाँ पर और सारा चार्ज ऐड किया, 4Q चार्ज दिया, 2Q से बढ़ाकर 4Q। तो ये दोनों कैपेसिटर के प्लेट के भीतर पोटेंशियल भी तो बढ़ जाएगा ना, ये सब नो। यहाँ पर भी पहले -2Q था, चार्ज बढ़ाकर -4Q कर दिया, ये सब नो, बोलो। ऑब्वियसली देयर पोटेंशियल विल चेंज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, बोलो। অমৃতা তোমার একটা এই জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের কনসেপ্টটা আমি তোমাকে দেব। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কি হয়, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है कि नहीं? So you know the relation, ये तो समझे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ডিভিডিআর। এই রিলেশনটা পড়েছে, তার মানে যেখানেই ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে সেখানেই পোটেंशियल থাকবে, है कि ना? दो भावे আমি বলে দিচ্ছি, कैपेसिटेंस में और कैपेसिटर में Q पोटेंशियल रहता है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर प्लस Q चार्ज इंक्रीज कर रहे हो, पहले 2Q था 4Q दिया, यहाँ पर भी -2Q था, चार्ज इंक्रीज करके 4Q कर दिया माइनस, तो क्या हुआ, चार्ज इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो लॉजिकल यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर 2Q चार्ज है, यहाँ पर -2Q चार्ज है और चार्ज और 2Q ऐड किया, तो 2Q चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा, अब और 2Q चार्ज ऐड किया तो टोटल चार्ज कितना हुआ 4Q। तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना हुआ -4Q। तो एज प्लस चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंक्रीज होगा, है कि नहीं? टेल मी। अगर ये Q चार्ज है तो r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये सब नो, দেখো এরকম ভাবে কিন্তু কোনো বইয়ে বলা নেই, আমি পুরো ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা বলে দিচ্ছি। r ডিস্টেন্স ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হয়েছিল, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो तार माने Q बढ़ले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े। तो देखो इसीलिए अगर तुम कैपेसिटर के दो प्लेट में चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ये सब नो, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द चार्ज। अब देखो dV dr, तो dV क्या होता है, E इंटू dr, हमने पहले भी बोले थे, इंटीग्रेशन करो, ये सब नो। इसका मतलब if you are increasing charge, any doubt, anyone? Okay, so if you are increasing the charge on the capacitor, अगर Q बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कैपेसिटर के भीतर, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, है कि नहीं? बिकॉज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो चार्ज बढ़ाले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ছে और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ले पोटेंशियल बढ़ছে। इसका मतलब क्या हुआ ना, देखो हम अभी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, এই স্লাইডটা সবার আশা করি লেখা হয়েছে। হ্যাঁ স্যার। এর পরের স্লাইড, এর পরে যেটা তোমাকে লিখতে হবে সেটা আমি বলছি। if a charge Q if a charge Q, ये चार्जটাকে प्लस Q দিয়ে डिनोट करा হচ্ছে, যেটা আমি जो हमने स्मॉल Q बोले थे वो वहीं पर कैपिटल Q बोल रहे, कोई बात नहीं,
if a charge capital Q put on an insulated conductor और ऐसे भी लिख सकते हैं, if a charge Q, अच्छा जी यहाँ लिखे put on a insulated conductor increases its potential by V, increases its its potential by V, মানে সিম্পল একটা ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর মানে ক্যাপাসিটর, তার দুটো এন্ডে এখানে প্লাস কিউ, এখানে কত চার্জ আছে, প্লাস কিউ চার্জ আছে, সরি ক্যাপিটাল কিউ, আর এখানে কত আছে, মাইনাস কিউ আছে। তো যখন প্লাস কিউ চার্জ আছে তখন ক্যাপাসিটরটার ভেতরে দুটো এন্ডের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত, the potential difference between the two ends of the capacitor is V। তার মানে এবার যদি তুমি চার্জটা বাড়াও, if you increase the charge what will happen, দেখো প্রত্যেকটা স্টেপ বলে দিচ্ছি, বইয়ে যেটা লেখা নেই। if you increase charge Q on the two ends at the two ends of the capacitor, the two plates of the capacitor, it will gives rise the electric field, है कि ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो इसके वजह से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। That means charge placed on the capacitor or in the two plates of the capacitor is directly proportional to the potential, yes or no? अगर Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। समिया and Richard, all of you? Yes. এটা কি তুমি যদি প্রপোর্শনালিটি ইকুয়েশনটাকে একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করো তাহলে কি হবে, Q is equal to একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট আসবে, that is called C। proportionality constant কি C বলছে, so Q is CV। what is C? C is the capacitance, যেটা proportionality constant হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে capacitance of the capacitor বা insulated conductor যেটা বলছে, ঠিক আছে। এটা আগে লিখে রাখো, তারপর আমি অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন দেব যেটা বইয়ে লেখা নেই। Sir, can you once again explain why we are using an insulator between the बोलो two जोर से बोलो, parallel थोड़ा plates? सा धीमे आवाज आ रहा है। Sir, why are we using an insulator between the two parallel plates? Like, yes, see, suppose very good question, इसका भी जवाब हमने दिया है। तुम्हारा क्वेश्चन है समिया, दे दोनों पैरेलल प्लेट के भीतर why we are using insulator ना? yes. अच्छा मान लो, I am giving an example, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज तार है, ठीक है, वायर है। तो किसी ने इस तार को टच कर लिया, कोई भी आदमी जिसके पाँव क्या है ना जमीन के साथ, मतलब अर्थ सरफेस के साथ कनेक्टेड है एकदम, तो टच करेगा तो क्या होगा, शॉक मिलेगा, ये सर ना। Yes. Why? Because current will flow through the body of that man, yes or no? Yes, sir. Current means क्या, चार्ज फ्लो होगा। current means nothing but here charge will flow, जो कि यहाँ पर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या होगा, इंसान की, इस आदमी के बॉडी के भीतर से ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ के बॉडी के माध्यम से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। Why? Because human body is a good conductor, very important, good conductor। conductor मतलब जिसके भीतर से चार्ज फ्लो हो सकता है। अगर यही इंसान कोई इंसुलेटेड, ध्यान से सुन लो, इंसुलेटेड जूता, जूता मतलब जानते हो तो शू, ये सब ना, या चप्पल जिसके साथ कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम ड्राई जूता या फिर चप्पल पहन के खड़ा हुआ तार को छुए तो उसे शॉक नहीं लगेगा। मतलब डोंट ट्राई दिस एट होम, ये बोल रहे हैं
ये कभी भी ट्राई नहीं करना, हम बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्यों? बिकॉज तब इस आदमी के साथ अर्थ का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज द चप्पल और द शू इज द इंसुलेटर। अंडरस्टैंड? तो चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चार्ज फ्लो होने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। तो बॉडी के बाद, चप्पल के बाद तो ये जमीन पे नहीं जा सकता, तब ये क्या हो रहा है? इंसुलेटर। तो अगर किसी भी इंसुलेटर के साथ इस तार को कनेक्ट कर दोगे, सपोज दिस इज एन इंसुलेटर, तो क्या होगा? चार्ज नहीं फ्लो हो पाएगा। अंडरस्टैंड? यस एक एक्सपेरिमेंट हमने करे थे घर में, बट डोंट ट्राई दिस एट होम। मान लो ये कभी कभार होता है, দেবারপিত হয়তো তুমি শুনেছো যে মাঝে মাঝে দেওয়ালে অনেক হয়, যদি বাড়িতে আর্থিং, अगर घर में आर्थिंग ठीक ठाक नहीं हो तो दीवार में हाथ देने से कभी कभार शॉक लगता है। देखे हो? দেবারপিত नाम শুনেছো? দেওয়ালে হাত দিলে মাঝে মাঝে কারেন্ট খায়, মাঝে মাঝে কারেন্ট খায়। কারেন্ট খাওয়ার এক্সপেরিয়েন্সটা কি হচ্ছে বলছি, কারেন্ট যদি কেউ খেয়ে থাকো দেখবে হালকা ভাইব্রেশন হয়, যদি খুব माइल्ड करंट है। हाई वोल्टेजर करंट अगर होगा तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर हाई माइल्ड एकदम कम करंट है तो क्या होगा? हाथ देने से लिटिल वाइब्रेशन होगा। फॉर स्मॉल करंट व्हाट इज द एक्सपीरियंस? लिटिल वाइब्रेशन यू विल फील। अगर हाथ दोगे तो हाथ में लिटिल वाइब्रेशन होगा। तो कैसे पता चलेगा कि स्विच बोर्ड में अगर हाथ दे रहे हो, मान लो तुम्हें लिटिल वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, এতটাই অল্প ভাইব্রেশন যে তোমরা তো বুঝতে পারছো না। কি করে বুঝবে বলো তো? এটা কারেন্ট কিনা? তুমি ফার্স্টে ধরো খালি পায়ের তলায় কিছু পড়েনি, মেঝেতে কানেক্ট করছো, মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছো, হাতটা এখানে দিলে সুইচ বোর্ডে মানে প্লাগ পয়েন্টে না, ধরো সুইচ বোর্ডটা কারেন্ট হয়ে গেছে, বডিতে হাত দিলে হালকা ভাইব্রেশন তুমি ফিল করতে পারছো। এইবার তুমি ধরো চটি পরে দাঁড়ালে, শু পরে দাঁড়ালে, ইনসুলেটেড যেমন চপ্পল থাকে না, চপ্পল পরে যদি তুমি হাত দাও, দেখবে যদি তুমি দেখো না ওই ভাইব্রেশনটা ফিল করতে পারছো না, কোনো ভাইব্রেশনই পাচ্ছ না, তার মানে কি বুঝবে বলো তো? এখানে কিন্তু কারেন্ট আছে। বুঝতে পারছো? अंडरस्टैंड? बिकॉज जब तुम चप्पल पहन के टच कर रहे हो करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है, बिकॉज इंसुलेटर आरते करंट যাচ্ছে না, কিন্তু যেই তুমি খালি পায়ে দাঁড়াচ্ছো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, হালকা ভাইব্রেশন ফিল করতে পারছো। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস অর নো? রিপ্লাই দেবে यस और नो? यस सर। ध्यान से देखो यहाँ पर जो था, ऑब्वियसली अगर हाई करंट होगा तो चप्पल भी काम नहीं करेगा। यदि हाई वोल्टेज আছে জুতো পরে দাঁড়ালেও তুমি বিশাল শক খাবে, बिकॉज हाई वोल्टेज। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। আমি এটা তোমাদের বলে রাখলাম। तो यहाँ पर भी देखो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब, ये प्लस है माइनस है, अगर दोनों के भीतर इंसुलेटर नहीं होगा, देखो कैपेसिटर का व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर? द मेन पर्पस ऑफ द कैपेसिटर इज टू होल्ड द चार्ज को पकड़ के रखे। अगर तुम किसी भी ग्लास में, बोतल में पानी रख रहे हो, वाटर रख रहे हो, तो उसका मकसद क्या है? टू होल्ड द वाटर, है कि नहीं? अगर किसी बोतल में या कंटेनर में अगर छेद होगा तो क्या होगा बोलो? सपोज ये कंटेनर है, यहाँ पर एक छेद है, तो क्या होगा? वाटर क्या होगा? यहाँ से लीक हो जाएगा। ये सब नो? तो यही चीज अगर यहाँ पर इंसुलेटर, मान लो यहाँ पर इंसुलेटर नहीं है, दोनों के बीच में कंडक्टर है, तो क्या होगा? प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या होगा? प्लस चार्ज इधर से चला जाएगा और माइनस चार्ज इधर न्यूट्रल हो जाएगा, तो कोई चार्ज अल्टीमेटली नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए इसको इंसुलेटर बोला जाता है, बिकॉज इंसुलेटर अगर रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक दैट शू चप्पल जो हमने बोला, अगर इंसुलेटर होगा तो क्या होगा? इंसुलेटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर। तो दोनों प्लेट के भीतर इंसुलेटर रखा जाता है ताकि ये चार्ज नहीं फ्लो हो पाए। अंडरस्टैंड? तो पहला क्लास, प्रथम क्लासটা আমাকে ক্যাপাসিটরের কনসেপ্টটা বোঝাতেই চলে যায়, কারণ এই কনসেপ্টগুলো কোনো বইয়ে বলা থাকে না। আচ্ছা, এইবার আমি বলছি, এটা বলার আগে ক্যাপাসিটরের ভেতরে চার্জ কেন স্টোর থাকে এটা আমাকে তোমাকে বোঝাতে হবে, তারপরে আমি ক্যাপাসিটেন্স কার কার উপর डिपेंड করে সেটা বলবো। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो हम दो प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें, ये कैपेसिटर का एक प्लेट है,
और नीचे वाला दूसरा प्लेट है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और नीचे में क्या है, बॉटम एंड पे जो है इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो सपोज यू आर एडिंग सम चार्ज, सपोज यहाँ पर प्लस चार्ज है, पहले 2 चार्ज था, यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो सी जस्ट इमेजिन ए प्लेट, इसके पहले हम वाई देयर आर 2 प्लेट्स, ये किसी भी किताब में नहीं रहेगा, ध्यान से सुन लेना। मान लो तुम बोलोगे हमें 2 प्लेट नहीं चाहिए, हम एक ही प्लेट में चार्ज रखेंगे, देखते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना है। मान लो एक प्लेट है, तो यहाँ पर तुमने प्लस चार्ज दिए, उसके बाद और एक प्लस चार्ज दिए, तो क्या होगा, प्लस चार्ज को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ रिपेल करते हैं। तो ये प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और एक प्लस चार्ज लाए तो और भी रिपल्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस रहेगा। अगर देखा जाएगा तो देखा जाएगा कि मैक्सिमम 1 या 2 प्लस चार्ज रहेगा, बाकी सब चार्ज गिर जाएगा, निकल जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। इसीलिए क्या करते हैं ना, कैपेसिटर में 2 प्लेट रहता है। ध्यान से देखो क्या होता है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्लस चार्ज एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज हियर, तो क्या होगा, प्लस चार्ज एक प्लेट में एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली इसीलिए कैपेसिटेंस होता है। रिपल्सन कर रहे हैं तो प्लस चार्ज यहां से निकलने के लिए तैयारी करेगा, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। सिमिलर केस विल हैपन फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। नेगेटिव चार्ज में भी क्या होगा, रिपल्सन के वजह से निकलने के लिए तैयारी में रहेगा। लेकिन क्या होगा, देखो बिकॉज ऑफ द 2 प्लेट, 2 प्लेट के भीतर तो एक डिस्टेंस है ना, तो ये 2 प्लेट के भीतर क्या है, हमने ना बोला यहाँ पर इंसुलेटर था, तो इंसुलेटर के वजह से चार्ज तो नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे प्लेट के भीतर क्या है, प्लस और नेगेटिव। ये प्लस और नेगेटिव के बीच कैसा फोर्स रहेगा, एट्रैक्शन। अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो opposite charge always attract each other, yes or no? I think this much amount you know, अमृता है कि नहीं, अमृता अंडरस्टैंडिंग। तो देखो तुम जैसे चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, इंडिविजुअल प्लेट पे रिपल्शन हो रहा है, लेकिन दूसरे प्लेट में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखो एक सेकेंड, सपोज आई एम गिविंग एन अदर एग्जाम्पल। सपोज यू आर इन ए बैच, प्राइवेट बैच और व्हाट एवर, उस बैच में यू हैव सम फ्रेंड्स एंड ए टीचर इज देयर। फ्रेंड्स आर वेरी बैड, सपोज फ्रेंड्स जो बैचमेट है वो वेरी बैड है, दे आर ऑल टाइम डिस्टर्बिंग यू, डिस्टर्बिंग कर रहे हैं पढ़ने में, आई मीन टू से व्हाट एवर, दे आर डिस्टर्बिंग you, and the teacher is very good, he is very helpful, and every time he guides and teach very nice. तो ध्यान से देखो, अगर ये बैड स्टूडेंट्स बढ़ेगा, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स इन द बैच इट इज इंक्रीजिंग, तो तुम्हारे भीतर क्या होगा, व्हाट विल बी योर टेंडेंसी, to leave the batch, yes or no? Please reply. What will be your tendency? दो स्टूडेंट्स था, अभी 4-5 स्टूडेंट्स आ गया, वो भी बैड है, तो what will be your tendency to leave, yes or no? Yes. Reply. इसके वजह से तुम बैच या वो ट्यूशन छोड़ना चाहोगे, लेकिन टीचर बहुत अच्छा है। मान लो ये एक ट्यूशन सेंटर है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाता है, तो बैड स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, तुम्हें रिपेल कर रहा है, ये छोड़ने के लिए तुम्हें मजबूर कर रहा है। लेकिन गुड टीचर, जो कि मेन मकसद है किसी भी जगह पे पढ़ने का, तो ये गुड टीचर क्या कर रहे हैं ना, तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है उस बैच में रहने के लिए। अंडरस्टैंड, यस और नो? यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स भी बढ़ रहा है, ट्यूशन सेंटर में
नंबर ऑफ गुड टीचर ये भी बढ़ रहा है। ये बैच के मुताबिक भी ले सकते हो या स्कूल के एंड से भी ले सकते हो, स्कूल भी समझ सकते हो। स्कूल में बैच स्टूडेंट्स बढ़ रहा है और गुड टीचर भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, बैड स्टूडेंट्स की वजह से तुम्हें वो स्कूल लीव करने के लिए ट्राई करोगे और गुड टीचर के वजह से तुम उस स्कूल में रहने के लिए तुम रहना चाहोगे। यहाँ पर बैड स्टूडेंट्स तुम्हें रिपेल कर रहा है और गुड टीचर तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज देखो, यहाँ पर प्लस चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो ये रिपेल करेगा, ये इन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स इफ यू आर एडिंग चार्जेस इक्वली टू द बोथ द प्लेट्स, व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज। ये सर नो, अगर तुम यहाँ पर दोनों प्लेट में ही चार्ज स्टोर करोगे तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर सिंगल प्लेट, मान लो यहाँ पर सिंगल प्लेट है, प्लस 2 चार्ज रह सकता है, तीसरा चार्ज लाओगे तो वो रिपेल करके इसको फेंक देगा। लेकिन यहाँ पर अगर साथ ही साथ एक नेगेटिव प्लेट भी रखोगे तो क्या होगा, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? यस। अभी ध्यान से देखो, पूरा एक्सप्लेनेशन अब तुम लोगों को पता चल जाएगा। सपोज आई एम डिक्रीजिंग द, ये प्लेट था सेम साइज ले रहा है, ठीक है, सेम साइज ले रहे हैं। हमने क्या किया, दूसरा जो कैपेसिटर रखा उसके भीतर देखो डिस्टेंस हमने डिक्रीज कर दिया। इसके भीतर इतना डिस्टेंस था, इसके भीतर इतना डिस्टेंस था। अब बोलो ध्यान से, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, इट विल हेल्प यू इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर। दोनों में क्या अंतर है, अच्छा दोनों में हम सभी एक ही कलर में दे देते हैं। साइज और शेप थोड़ा सा ड्राइंग में इधर उधर होगा, लेकिन मान लो दोनों कैपेसिटर का प्लेट का साइज सेम है, ठीक है, शेप भी सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस हमने घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। तो बोलो कैपेसिटेंस में कुछ चेंजेस होगा? अगर यहाँ पर जितना पहले केस में जितना कैपेसिटर होगा दूसरे में कैपेसिटर सेम होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो, जस्ट थिंक एंड आंसर। हाँ बोलो, देवारप्रीत, रिया, समिया। हाँ समिया की बोल से बोलो। इंक्रीज, यू आर सेइंग इंक्रीज, ताई तो? Yes. एंड इसे देवारप्रीत, increases. बाकीरा, अमृता, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज यू कैन शेयर। यहाँ पर कुछ डरने का बात नहीं, यू कैन शेयर। हाँ So increase होगा इंक्रीज, व्हाई इंक्रीज? because distance is decreasing. So Of course, extreme. yes exactly because distance you know। अच्छा कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ही हम दिखा दे। देखो यहाँ पर सिंपल कूलम्स लॉ के माध्यम से तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पकड़ लो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, r। तो दोनों के भीतर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Q1, ये मान लो Q2, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक माइनस होगा, माइनस का मतलब क्या है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस चार्ज? द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस चार्ज, माइनस सिंबल इज द नेचर ऑफ द फोर्स इज एट्रैक्शन। तो देखो अगर, तो दैट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। डिस्टेंस अगर घटेगा, इफ डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग फोर्स विल इंक्रीज। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मान लो पहले 4 चार्ज स्टोर कर सकते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो यहाँ पर और ज्यादा चार्ज 6 चार्ज स्टोर कर पाओगे, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ गया, कैपेसिटी भी बढ़ गया। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes sir.
Yes. So these are the concept. किताब में या बुक में क्या लिखा है ना, only the book, any kind of book, it is written that capacitance depends on shape, size, etc. But why? That is not well explained. I am writing here. Just a minute. हाँ. Capacitance depends on the following factor. Capacitance on the following factors. अच्छा, before that I just want to tell you, कैपेसिटर के ऊपर जितना क्लास हुआ है, आई थिंक दिस इज द सेकेंड और थर्ड क्लास. अच्छा, पोटेंशियल के ऊपर পোটেনশিয়ালের উপর দুটো ক্লাস হয়েছে. সো দিস ইজ দ্য ক্যাপাসিট্যান্স ফার্স্ট ক্লাস. সো এই ক্লাসটা কি হবে, পাবলিক থাকবে. তার পরের গুলো কিন্তু প্রাইভেট বা আনলিস্ট করে দেবো. তো এই ক্লাসটা সবাই দেখতে পারবে, এর পরের ভিডিওগুলো মানে স্টুডেন্ট ছাড়া কেউ দেখতে পারবে না আমার. ওকে, এটা বলে রাখলাম. सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एक नंबर क्या होगा, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. साइज एंड शेप की करे ना, मान लो यहाँ पर जो साइज था, ये साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्लेट का साइज बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इट कैन स्टोर मोर चार्ज. डिस्टेंस सेम रखा. ये सब नो समझ में आ गया. একটা ছোট গ্লাসে छोटा बोतल में 500 ml वाटर में, बोतल में जितना वाटर स्टोर कर पाएगा 1 लीटर में और ज्यादा. तो यहाँ पर भी सेम है. इफ साइज ऑफ द प्लेट इज मोर, so it can store more charges. Yes or no? So it is like that. Size and shape of the conductor. Second is nature of the surrounding medium. Nature of the surrounding medium. 3 number, presence of the other conductors in the neighborhood. ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, इसके भीतर सभी पॉइंट आ जाता है. क्या, प्लेट का साइज कितना होगा, पूरा सिस्टम का साइज और शेप बोल रहे हैं यहाँ पर. दोनों प्लेट के भीतर डिस्टेंस कितना होगा, ये भी साइज और शेप में आ रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड. साइज और शेप के भीतर दोनों प्लेट का साइज कितना होगा, ये भी आ रहा है. दोनों प्लेट के भीतर डिस्टेंस भी क्या होगा. अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर का शेप भी चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तो साइज और शेप के भीतर ये दोनों ही आ रहा है. नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब ये दोनों प्लेट के भीतर कैसा मीडियम है, इंसुलेटर कितना है. अगर ये इंसुलेटर कम होगा तो क्या होगा, चार्ज नहीं स्टोर कर पाएगा. ये सब अगर इंसुलेशन, जो बैड कंडक्टर, यहाँ पर अगर जो इंसुलेटर है, भीतर हो बाहर हो सभी जगह पर, अगर इट इज मोर गुड इंसुलेटर, अगर अच्छा इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा. ये सब नो. और प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, मतलब मान लो यहाँ पर एक अच्छा कंडक्टर है, बहुत नजदीक एक अच्छा कंडक्टर है, तो क्या होगा, चार्ज यहाँ पर लीकेज हो जाएगा. चार्ज का फ्लो, तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी घट जाएगा. तो इसीलिए बोला गया है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड. अंडरस्टैंड. नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन. अच्छा, ये अगर हो गया तो बोलना.
Q, you know the relation अभी बोला Q is equal to C into V, एकदम पहले ही बोले थे आज. Q is equal to CV. तो C is equal to क्या होगा? Q by V. Q का यूनिट क्या है ना? कूलॉम. What is the unit of Q? कूलॉम. ताई तो. And what is the unit of V? V, volt. That means what will be the unit of capacitance? C, coulomb per volt. Understand? इस coulomb को ऐसे बोला जाता है. तो coulomb per volt is also called farad. F-A-R-A-D. So what is the unit of capacitance? Coulomb per volt equals to farad. Understand all of you? Please reply. Yes. अभी किसी भी चीज के साथ अगर माइक्रो, हर एक हम चीज बोल रहे हैं, माइक्रो फेराड बोला गया. मान लो 1 माइक्रो फेराड. माइक्रो, अच्छा माइक्रो से पहले मिली आता है. मान लो अगर कहीं पर भी मिली लिखा है, मिली, फेराड को ऐसे ही भी बोला जाता है. एमएम, फेराड को कैपिटल में. एम मतलब 10 to the power -3, যেখানে স্মল এম থাকবে মানে বুঝবে 10 to the power -3. So it will be how much farad? 10 to the power -3 farad. Okay. अगर माइक्रो रहेगा -6. it will be 10 to the micro stands for 10 to the power -6. Understand? अगर नैनो, स्मॉल n, नैनो farad means 10 to the power -9 farad. ये एकदम जान लेना. m मतलब स्मॉल m means 10 to the power -3, माइक्रो means 10 to the power -6, नैनो n stands for 10 to the power -9. और एक चीज रहता है, देखो न्यूमेरिकल्स तो आएगा यहाँ पर, और एक चीज रहता है p. p stands for small p, मान लो 10 to the power -12. So 1 picofarad, it is called picofarad. 1 pm is equals to 10 to the power -12 farad. Understand? Yes sir? Yes, sir. আচ্ছা, ডাইমেনশনটা আমাকে পরের দিন বলবে. ডাইমেনশনটা এখন তোমরা বুঝতে পারবে না, কারণ কারেন্টের ডাইমেনশনটা, ভোল্টের ডাইমেনশনটা তোমরা জানো না. আমাকে কেউ একজন মনে করাবে. পরের ক্লাসে আমি ডাইমেনশন অফ দ্য ক্যাপাসিটেন্সটা বোঝাবো. ঠিক আছে? কেউ একজন অতি অবশ্যই মনে করাবে. ওটা তো মানে কনসেপচুয়ালের ব্যাপার. টিল নাও অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো স্লাইড লেখা থাকলে বলবে. স্যার আগের ক্লাসটা কি বলুন? হ্যাঁ স্যার, এর আগেরটা মানে এটা না স্যার, এটা না. স্যার 5 নম্বর স্লাইডটা কি দেবেন? এই পরেরটা কি দেবেন? হ্যাঁ. আচ্ছা, এরপরে আমি একটা ক্যাপাসিট্যান্সের কেস আছে করিয়ে রাখতে চাইছি. দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপাসিট্যান্স অফ এন আইসোলেটেড স্ফেরিক্যাল কন্ডাক্টর. ক্যাপাসিট্যান্স অফ অ্যান আইসোলেটেড স্ফেরিক্যাল কন্ডাক্টর. ওকে, তো এখানে কি না, ছবিটা আমি ড্র করছি. मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर
जो कि कंडक्टर है, ठीक है। इस स्फीयर के सरफेस में हमने चार्ज स्टोर किया। कितना चार्ज? ना प्लस क्यू चार्ज, टोटल प्लस क्यू चार्ज स्टोर किया। ध्यान से सुनना। सपोज क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। सपोज क्यू चार्ज is uniformly distributed over the entire surface of the sphere. Understand? এর সারফেসের উপর টোটাল প্লাস কিউ চার্জ স্টোর করা আছে। তো इसका ইকুইভ্যালেন্ট হতে দেখো যে কোনো স্ফিয়ারের যদি সারফেসে, এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরতে পারো, একটা সিম্পল কনসেপ্ট। যদি সারফেসে কিউ চার্জ স্টোর থাকে তাহলে দেন উই ক্যান কনসিডার দ্যাট হোল কিউ চার্জ इज स्टोर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। पूरा चार्ज इसका सरफेस में फैला हुआ है। इसका इक्विवेलेंट पिक्चर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एज इफ एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर देयर इज क्यू चार्ज, क्यू पॉइंट चार्ज। अंडरस्टैंड? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। स्फीयर के बॉडी में तुम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है ना, एज इफ उसका सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अंडरस्टैंड? तो अभी इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें इस चार्ज के अगर इस स्फीयर के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है तो एज इट इज ए स्फीयर, सपोज आर इज द रेडियस। अभी ऑब्वियसली ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एग्जैक्ट स्फीयर ये नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, जस्ट इमेजिन। तो इसका रेडियस अगर आर होगा तो इसका मतलब व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हाट विल बी द पोटेंशियल? एक सेकेंड, पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डिस्टेंस आर है नहीं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा, इस रेडियस को हम कैपिटल आर बोल, लेकिन बिकॉज बहुत सारे किताब में इस रेडियस को कैपिटल आर बोला गया है, तो ठीक है हम ये कैपिटल आर ही लिखते हैं। लेट द रेडियस इज कैपिटल आर। तो क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन জিরো ये कहाँ से है? এটা একদম পোটেনশিয়াল। অমৃতা তুমিও দেখবে বইয়ে তোমাদের পড়িয়েছিলাম আগে, ধরো তুমি ভিডিওটাও পেয়েছো। सपोज क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज, तो आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सर नो, ये भी सेम है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज सेंटर में, तो सरफेस में हर एक पॉइंट तो आर डिस्टेंस में ही होगा, तो potential at all the points of the surface will be same, q by 4 pi epsilon not r। yes or no? तो एक बार ध्यान से देखो, नेक्स्ट फिर से हम लिख रहे हैं v is equal to q by 4 pi epsilon not r। अभी हमने कैपेसिटेंस के साथ क्या रिश्ता देखा है? व्हाट इज द कैपेसिटेंस? c is equal to q by v। तो यहाँ पर तुम q by v निकाल सकते हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं Q बाई V। ये एक नंबर इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q बाई V क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर चला गया तो क्या होगा? Q बाई V। ये सब नो, ये नंबर इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर? फ्रॉम 1 and 2 you can write 4 pi epsilon naught r is equal to q by v is equal to c. That means capacitance is equal to of a capacitor spherical 4 pi, sorry এটা capital R होगा, sorry फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r। That means see, for a spherical capacitor C
you can say is directly proportional to r. स्फीयर का रेडियस जितना बढ़ेगा उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, है कि नहीं? अभी देखो फिजिकली हम ये प्रूफ दिखा देंगे क्यों, अगर रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा। ध्यान से देखो, वेरी इजी। मान लो ये छोटा रेडियस का है एक कैपेसिटर और एक बड़ा रेडियस का लिया, तो क्या बढ़ा बोलो? अगर आर बढ़ेगा तो क्या होगा? सारफेस एरिया भी तो बढ़ेगा ना, है कि नहीं? যেমন নাকি একটা ছোট প্লেট ও যতগুলো চার্জ স্টোর করতে পারে, একটা বড় প্লেট বেশি চার্জ স্টোর করতে পারবে কারণ ওর জায়গাটা বেশি। ये सब ना, ये भी सेम है। ये छोटा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। ये सब ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ये जो डेरिवेशन c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r, ये हमने बोल दिया, ये आता है कभी कभी एग्जाम में, ये डेरिवेशन आता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट दिन हम कैपेसिटेंस का बाकी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो सब करवा देंगे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो करवा देंगे, ठीक है? फिर एक तो नेक्स्ट पेज तो देखो ना। यस, प्लीज रिप्लाई। हाँ सर।